مانرب ناول تہمت تمہارے عشق کی قسم نمبر 59 رائٹر ہادیہ مغل۔ دھوپ ہونے کے باعث آج ذہن اسے ٹیرس میں لے آیا تھا۔ اس کی وہیل چیئر کو اس نے ٹیبل کے قریب روکا اور خود چیئر پر بیٹھا۔ زری خاموشی سے ذہن کو دیکھنے لگی جو سفید شلوار سوٹ میں سیدھا دل میں سما رہا تھا۔ خود وہ کھلا صاف فراق پہنے ہوئے تھی، گھنے بال پوشت پر پھیلے تھے جسے کیچر سے آدھا سمیٹا ہوا تھا۔ موبائل بے پر اس نے اپنے موبائل کو دیکھا تو چہرے پر غضب بڑھنے لگا، پر پھر اس نے کچھ ٹائپ کر کے موبائل ایک طرف رکھا۔ اپنے مجرم سے ملنا چاہو گی؟ زری نے دہل کر ذہن کو دیکھا جس کے چہرے پہ اس وقت کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے وہ اجنبی سا ذہن لگا۔ مجرم کون جس نے تمہیں چھونے کی جرات کی تھی؟ اس نے زری کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگا کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ اجنبیت کی جگہ اب اپنا پن چہرے پر ظاہر ہونے لگا، لیکن آنکھوں میں آگ سی تپش تھی جو دھیرے دھیرے ہی کام ہوئی۔ آپ کو وہ مل گیا؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ آواز نہایت آہستہ تھی۔ اس نے میری زندگی کو چھوا تھا، اسے تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ لاتا۔ وہ مسکرایا تو زری کو اس کی مسکان میں ایک وحشت سی محسوس ہوئی۔ وہ کپ کپائے بنا نہیں رہ سکی۔ مجھے اس کا سامنا نہیں کرنا زین، اس نے انکار کیا۔ تمہیں اسے سزا دینی ہے، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ آپ میرے ذہن ہی ہیں نا؟ اس نے تسلی چاہنے کے لیے اس کا کف تھام لیا جو اکثر وہ تھام لیتی تھی۔ تمہارے علاوہ کس کا ہو سکتا ہے یہ ذہن چودھری؟ اس کی جبین کے خم کو انگوٹھے کی پور سے دبائے وہ واپس اپنے تاثرات نرم کرنے لگا۔ ان چند دنوں میں وہ خود کو جس طرح ضبط کے مرحلے سے گزارا تھا یہ اس کا دل اور اس سے جڑا ایک شخص جانتا تھا، سندری کے۔ اس نے نگاہ چرائے کہا، جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ذہن کو غصہ آ جائے گا اور اس کا ذرا سا بھی غصہ کرنا زری جیسی معصوم لڑکی کی برداشت سے باہر تھا۔ ہرگز نہیں، اس نے فوری نفی کی تو اس نے چہرے پر کئی سوالات کی پرچھائی لیے اسے دیکھا۔ سنم عرف سندر کی شادی ہو چکی ہے اور جانتی ہو کس سے ہوئی ہے؟ اس نے خم پر ہنوز انگوٹھا سہلائے کہا، یہ مت کہیے کہ آپ اس سے نکاح کر چکے ہیں، قسم سے میں مر جاؤں گی۔ ذہن کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں لال ڈورے ڈیرا جمانے لگے۔ زری کو اپنی جلد بازی پر افسوس ہوا۔ باسط خان سے شادی ہوئی ہے اس کی، ذہن نے بے تاثر انداز میں کہا۔ زری کے دونوں ہاتھ پاؤں ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ باسط بھائی سے وہ بڑبڑائی تو ذہن نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے سامنے سے اٹھ گیا گویا ناراضگی ہنوز قائم ہو۔ ذہن، وہ بے قراری سے پکار اٹھی تو ذہن نے قدم روک لیے۔ ابھی میں اتنی بھی ٹھیک نہیں ہوں جو آپ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذہن کو اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی، تبھی رکھی سے ٹرے لے کر وہ واپس آیا اور ٹیبل پر ٹرے رکھی جس میں اس کے سوپ اور ڈرائی فروٹس تھے۔ تمہارا ذہن تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر الٹے سیدھے لفظ منہ سے نکالو گی تو سزا ملے گی، وہ نرمی سے بولا۔ پھر سوپ؟ ذہن، میں نے نہیں پینا، اب تو میں ٹھیک بھی ہو گئی ہوں، وہ چیڑ کر بولی۔ یہ سزا ہے میری جان۔ اس نے سوپ کا باؤل ہاتھ میں پکڑا تو زری نے پھولے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ کوئی اور سزا دیں لیکن اس سوپ کو مجھ سے دور کر لیں، وہ ناک سکوڑے بولی۔ وہ سزا تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس کی سماعت کے قریب جھکے بے باکی سے بولا، جبکہ ذہن کے سرسراتے لب اسے اپنے کان پر محسوس ہوئے تھے۔ زری کے سفید گال دہک اٹھے تھے۔ ہم بہہ رہے ہیں ذہن، وہ لب تر کیے بولی۔ اچھے سے جانتا ہوں تبھی اتنے فاصلے پر موجود ہوں۔ بوجھل سا انداز زری کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگا۔ ذہن، آپ کی اماں آ جائیں گی، وہ کیا سوچیں گی؟ زری کو کچھ سمجھ نہ آیا تو صدیقہ بیگم کے آنے کا بہانہ گڑھا۔ ان کی فکر نہ کرو، اب وہ ہمیں قریب قریب دیکھے خوش ہوگی۔ چہرہ قریب کیے وہ گمبھیرتا سے بولے، اسے لاجواب کر گیا۔ ذہن، سوپ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے ذہن کی توجہ سوپ کی طرف دلوائی تھی۔ ذہن نے نفی میں سر ہلایا اور پھر سوپ کا چمچ اس کے لبوں کے قریب کیا۔ ایک مرتبہ ٹھیک ہو جاؤ، سارے حساب بے باک کروں گا۔ اس کی پیشانی چھوئے وہ زری کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایک پورا دن سوگواری میں گزر چکا تھا۔ یزدان واج کے ساتھ ہی تھا جبکہ عورتیں حویلی میں موجود تھیں۔ اسے تعبیر کی فکر ستا رہی تھی۔ کل سفر کے دوران بھی اس کی حالت نیم کنندگی میں رہی تھی۔ وہ اسے ہسپتال لے کر جانا چاہتا تھا لیکن وقت مناسب نہیں تھا اور اس کے بعد اس کا تعبیر سے سامنا نہیں ہوا تھا اور اس نے حویلی کے اندر جانا مناسب بھی نہیں سمجھا تھا۔ مجھے آج گھر جانا ہے وہاج سلطان، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تو چلے جاؤ، تمہیں کس نے روکا ہے؟ وہاج نے شانے اچکائے تو یزدان نے دانت پیسے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر جاؤں گا، اسے بلاؤ۔ وہ گھر تھا جبکہ وہاج نے ماتھے پر بال نمایاں کی۔ اس کے تیا جان کی موت ہوئی ہے، اسے کچھ دن یہیں رہنے دو۔ ہرگز نہیں، میں اپنی بیوی کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تم تعبیر کو لے کر آتے ہو یا میں خود چلا جاؤں؟ یزدان کی ایک ہی ضد تھی۔ یزدان، وہ دبا دبا بولا تو یزدان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہاج اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہوا۔ یزدان نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔
इतनी दोस्ती तो थी नहीं कि उसका हाथ पकड़ लेता। तुम्हारी बीवी के पास ही लेकर जा रहा हूँ, जिसके बगैर तुम मेरा जीना हराम कर रहे हो, वो नकवा से बोला। तो शिस्तान के चेहरे की रौनक बहाल होने लगी। मुझे लगता है तुम्हें अपने बीवी की याद आ रही है, तभी इतनी आसानी से मेरी बात मान ली। वो वहाज को चिढ़ाने से बाज नहीं आया था। वहाज का दिल चाह एक पंच उसके मुंह पर मार दे, जो हमेशा उसे झिझकार देता था। वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में चंद मेहमान मौजूद थे। नजमा बेगम भी वहीं में थी। अम्मी ताबीर कहाँ है? वहाज ने नजमा बेगम से पूछा। अपने कमरे में आराम कर रही है, अनाबिया भी वही है। जाओ देखो। सुबह से अनाबिया भी परेशान सी है और ताबीर की शायद तबीयत ठीक नहीं है। मेहमानों की वजह से मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, वरना मैं देख लेती। यजदान का दिल बेकरार होने लगा। उसे शक था कि ताबीर की तबीयत ठीक नहीं होगी, और अब तो वो उसे देखने के बेचैन हो चुका था। आप चले मेरे साथ, वहाज ने नजमा बेगम को कहा। जबकि यजदान ने सीढ़ों की जानिब देखा, फिर बिना किसी का ख्याल के ऊपर बढ़ गए। यजदान वो मुठियाँ भींच कर रह गया, लेकिन सामने का मंजर उसका खून भी खौला गया था। अनाबिया रेलिंग के करीब खड़ी थी, जबकि शायान सागर अपने पोर्शन से उनके पोर्शन में आ रहा था। जिस तरह वो खड़ी थी उसी जानिब दरवाज़ा था जो दो पोर्शन को आपस में मिलाता था। वो अपने ख्यालात की दुनिया में थी, तभी इर्द गिर्द से गाफिल थी। सर्दी के बैस ब्लैक शाल कंधों पर ओढ़े, ऊंची पोनी टेल की ब्लैक मिनी स्वेटर पहने वो वहाज सुल्तान को दूर से भी अपने हुस्न का नज़ारा करवाती महसूस हुई। या फिर ये उसकी नज़र का कमाल था कि वो लड़की उसके दिल में बसी हुई थी। तभी उसका रूप अजभर किए हुए था। शहन सागर की नज़र भी उस लड़की पर गई थी। वो खूबसूरत सी लड़की अपने हुलिये से उस हवेली की नहीं लग रही थी। वहाज के ऊपर जाने से पहले यजदान और शायान सागर आमने सामने आ चुके थे। यजदान भी ठिठक कर रुका, जबकि शायान की नज़र भी बदली थी। और वहाज लाउंज में ही मौजूद था। तुम? शह ने अबरू चुकाया। नए नए चेहरे उसे हवेली में देखने को मिल रहे थे। अपने काम की वजह से वो सबको नज़रअंदाज करता रहा था। नौफल यजदान ताबिर मलिक का शुवर। यजदान ने हाथ आगे बढ़ाया। शहन को झटका लगा था। उसकी भारी आवाज़, हाथ बढ़ाने का अंदाज किसी की याद दिला गया था, मगर किसकी याद दिला गया था वो समझ नहीं पाया। शायन ने उसका चेहरा देखा और फिर उसका हाथ थाम लिया। मेरा नाम शायान सागर है, सागर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मालिक, और यहीं गांव में मेरा एक हॉस्पिटल है। उसने तफसीली तारुफ करवाया था, गोया उसे मुतासर करना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन पहले आपके बारे में पढ़ रहा था। आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। मैं भी अपना बिजनेस शुरू करने का इरादा रखता हूँ। इससे पहले मेरी कई बुटीक्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भी मुतारफ़ हो चुकी हैं। दैट्स ग्रेट। क्या एज है आपकी? शायान को इतना तो पता था कि वो ताबीर से काफ़ी छोटा है, लेकिन देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। जिस दिन उसे ताबीर के निकाह का पता चला था वो तेज़ रफ्तार से गाँव में जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हुआ जहाँ उसे शजीहा चौधरी मिली थी। उस दिन वो ताबीर के निकाह को ही रोकना चाहता था, लेकिन शजीहा चौधरी का खूबसूरत चेहरा उसे हर शय से बेगाना कर गया था, और इस चेहरे को देखकर वो इंतकाम भी तो भूला था जिसका अंजाम उसके सामने आज मौजूद था। उम्र में क्या रखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा तजुर्बा आपसे ज़्यादा है। उसके रोजे लहजे का रूप शायद सागर को भी मुतासर कर गया था। दैट्स ग्रेट। आपसे पार्टनरशिप करने में मज़ा आएगा। यजदान को अपना तीर निशाने पर जाकर लगता हुआ महसूस हुआ। मैं अपनी बीवी से मिलकर आता हूँ। कारोबार से ज़्यादा वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से आज मैं इस मकाम पर हूँ। शाह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे यजदान ने थाम कर दबाया और जाने के लिए मुड़ा। शहन के जहन में चुमाका हुआ था। आप शायद वही हैं जिसके बारे में सुना गया था कि आपने 5 कत्ल किए और आपने ताबीर से मोहब्बत का दावा भी किया था। शहन का तमस्कुर उड़कता लहजा उसे वाज़ेह महसूस हुआ, लेकिन वो मुस्कुराया था। मोहब्बत का दावा नहीं, अहद इश्क किया था, जिसका सबूत आज आपके सामने कि वो मेरी बीवी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, क्योंकि कार गुजरने वालों में से हूँ। वैसे आपका काफ़ी जल्दी याद नहीं आ गया। शहन को उसका अंदाज खासा चुभा था। पसंद तो वो भी ताबीर को किसी ज़माने में करता था, मतलब मेरा शक। यजदान अपने पीछे ताबीर की आवाज़ सुनकर वो शायर को भी नज़रअंदाज कर गया था। वो बोझल आंखों के साथ कुछ फासले पर ही खड़ी थी। वो नींद से जाकर आई थी। उसका उलझा हुलिया यजदान को बेकरार कर गया था, जबकि शायान अपनी नज़र अंदाज़े पर कुढ़ कर रह गया था। उसे अपनी नज़र अंदाज़ी हद दर्जा बुरी लगी थी, और उस शख्स ने वही हरकत की थी। ताबीर, क्या हुआ आपको, और ये क्या हालत बनाई हुई है? कल से मैं आपको नज़र नहीं आया और आपका ख्याल नहीं कर सका, तो आपने अपनी ये हालत बना ली। अब हर वक्त मैं आपका ख्याल रखने के लिए आपके पास नहीं रह सकता ना? शयान की आंखें हैरत से फैलीं। मोहब्बत का ऐसा मुजाहरा उसने आज तक नहीं देखा था। अपनी उम्र से बड़ी लड़की को वो एक बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा था। यजदान, मैं ठीक हूँ, हाथ हटाओ अपने। वो घबराई थी।
शहन के साथ वो उसे खड़ा देख चुकी थी, तभी उसकी जानिब आई थी। वह आज भी ऊपर आ चुका था। उसने शहन सागर पर कहर आलूद निगाह डाली और अनाबी की जानिब बढ़ा, जो राहदारी में खड़ी खुद को तनहा महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कमरे में जाए या यहीं ठहरी रहे। शहन सागर को अपना वहाँ ठहरना बेमकसद लगा, लेकिन उसकी नज़र ताबीर पर ही जमी थी, जो इस शख्स की हमराही में काफ़ी खूबसूरत हो चुकी थी। उसकी नाक का पर्पल डायमंड, कंधों पर बिखरे बाल, गर्ज वो आम सी ताबीर तो लगी ही नहीं थी। वो तो यजदान की ताबीर थी जो बदल गई थी। नज़र भटक कर यजदान पर गई। वो शख्स उससे किसी की याद दिला रहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन चाह कर भी उसे याद नहीं आ रहा था। वो आज मैं ताबीर को लेकर जा रहा हूँ। यजदान का हुक्मी अंदाज और वो आज की माथे के बाल एक साथ उभरे। तुम कमीने तो हो, इतना मुझे पता है, लेकिन यहाँ अपना कमीनापन ना दिखाओ। मेरे ताया का इंतकाल हुआ है, फिलहाल ताबीर यहीं रहेगी। शहन को इतनी दूर से वो नॉर्मल बात करते हुए लग रहे थे। ये कमीनापन नहीं, मेरा हक है। वो मेरी बीवी है, उसे मैं जहाँ मर्जी लेकर जाऊँ तो मुझे रोक नहीं सकते। और शुक्र हो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यजदान तुम्हारा कज़न हमें देख रहा है। यजदान ने वहाज का कल्ला ठीक किया तो वहाज ने उसके कंधे की ओट से देखा। साले बहनोई की दुश्मनी से ज़्यादा अहम कज़न से दुश्मनी है, इसलिए फ़िलहाल मुझसे दोस्ती कर लो। तबीर पहले ही शायन की वजह से घबराई हुई थी। मजीद कसर उनकी लड़ाई पूरी कर रही थी। यजदान हम कल चले जाएंगे। उसने आगे बढ़कर मामला संभालना चाहा। यजदान ने ताबीर को देखा। ताबीर को देखती चेहरे के तासुरात तफक्कर में बदल गए थे। आप यहाँ पर बेटर फील कर रही हैं? उसने तसल्ली चाहिए। हाँ, मेरा घर है ये। उसने यजदान को बावर करवाया। आपका घर ये नहीं है। यजदान को बेवजह गुस्सा आया। यजदान मैंने ऐसे ही कहा है, मामले को तूल मत दो, अंदर चलो। वो उसे शायान की नज़र से उछल करना चाहती थी। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उसे ले ही जाओ यहाँ से, वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। वहाज ने मदाखलत की तो ताबीर एक बार फिर घबराई। भाई आप गुस्सा मत करें, यजदान आज यही रहेंगे। ताबीर ने मामला संभालने के लिए यजदान का बाजू थाम लिया और यही यजदान का गुस्सा रोकने के काफ़ी था। दोनों की दुश्मनी ताबीर को अब उलझा देती थी। वो यजदान का बाजू थाम कर उसे अंदर कमरे में ले जा चुकी थी। वहाज उसे देखकर अनाबिया की जानिब आया और उसके सामने खड़ा हो गया, गोया शायान का साया भी उस पर पड़ने ना देना चाहता हो। जबकि अनाबिया तो यजदान और ताबीर की अंडरस्टैंडिंग को हसरत भरी निगाह से देखने में मगन थी। वहाज कब उसके सामने आकर खड़ा हुआ उसे खबर नहीं होती। शायान अब भी वही मौजूद था। उसे अपनी कैफियत समझ ही नहीं आ रही। इतनी नफरत भरने के बावजूद, इतनी जिल्लत रसवाई के बाद भी वहाज सुल्तान अपनी शख्सियत की पुरएतमादी के बायस वहाँ मौजूद था। और वो लड़की जिससे सनम की दोस्ती थी, वो तस्वीरों में तो वो देख ही चुका था, लेकिन आज रूबरू देखा तो उसे वहाज की किस्मत पर रिश्क आया था। और एक वो था जो खुद को खुशकिस्मत तस्वर करता था। आज उसकी मोहब्बत भी किसी और की हो चुकी थी। अपने चारों जानिब उसे खसारे महसूस हो रहे थे। उसे अब वहाँ ठहरना फजूल ही लगा था, इसलिए वहीं से वापस मुड़ गया था। जबकि वहाज ने पीछे की जानिब देखा, वो जा चुका था। उसे इत्मीनान हुआ था। कमरे में जाओ तुम, और जब तक मैं वापस ना हूँ कहीं और मुझे नज़र मत आना। अनाबिया ने फौरी सर इस बात में हिलाया और सीढ़ियों से नीचे की जानिब, क्योंकि वहाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। अनाबिया उसको नीचे जाते देखकर वहाज को तयश आया, लेकिन वो सीढ़ियाँ उतरकर नजमा खातून के पास जा चुकी थी। वहाज ही वहीं रेलिंग पर हाथ जमाए खड़ा रह गया, लेकिन फिलहाल उसे मर्दाने में जाना था जहाँ मेहमान मौजूद थे। यजदान भाई की तरफ से मैं सॉरी करती हूँ, पर तुम गुस्सा मत करो। कमरे में आते ही अपना बाजू आज़ाद करवाने पर ताबीर रुआन सी हुई थी। ताबीर आप क्यों सॉरी कर रही हैं? अपना गुस्सा भाड़ में झोंकता वो ताबीर की जाने मुड़ा और उसे अपने हिसार में लिया। मुझे आपकी फिक्र हो रही है, ये बताएं आपने खाना खाया था? उसने नरमी से पूछा तो ताबीर ने सर हिलाया। लग तो नहीं रहा कि आपने खाना खाया। तुम शैम भाई के साथ क्या बात कर रहे थे? ताबीर का अंदाज आम था, लेकिन यजदान को वाज़ेह महसूस हुआ। आप मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर रही हैं, तो मेरे सवाल का जवाब दो पहले। बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता हूँ मैं उससे, और वो भी इंटरेस्टेड है। यजदान ने बेतसुर अंदाज में जवाब दिया। हरगिज़ नहीं यजदान, तुम शायान भाई के साथ कोई बिजनेस नहीं करोगे। ताबीर घबरा कर बोली, मगर क्यों? बस मैंने कह दिया तुम नहीं करोगे। उसे खौफ महसूस होने लगा था। सैदान भी तो उससे शादी करना चाहता था। यजदान ने उसे मार दिया था, कहीं वो शायान सागर को भी नुकसान ना पहुंचा दे। ताबीर उसकी जनुयत से अच्छी तरह वाकिफ थी। एक कत्ल तो उसने ताबीर की आंखों के सामने ही किया था, जिसने उसका हाथ पकड़ने की जसारत की थी। ये कारोबारी मामलात हैं, उसे एक तरफ रखे। हमारे दरमियान ऐसी बातें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। यजदान का अंदाज संजीदा था। यजदान मैं कह रही हूँ
तुम क्यों नहीं समझते? वो चिढ़कर गोया हुए। ताबीर यजदान को तैश है, लेकिन फिर उसका सफ़ेद चेहरा देखकर वो लब भेज किया था। यजदान, अगर शायान भाई से पार्टनरशिप करने का सोचा भी तो मुझसे अच्छाई की उम्मीद ना रखना। क्या करेंगी आप? अपने भाई की वजह से ऐसा कर रही हैं तो बहुत गलत कर रही हैं। मैं भाई की खातिर क्यों करूँगी? तुम्हें मैं मना कर रही हूँ तो मान जाओ ना। वो लाचारगी से बोली। आप बात को बिला वजह बढ़ा रही हैं। अगर आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ आपको तनहा छोड़कर जाऊँ तो प्लीज़ चुपचाप सो जाइए। यजदान को यही लग रहा था कि वो वहाज की वजह से ही कह रही है। माजी में उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे थे, जिसका ताबीर ने एक दो बार जिक्र किया था। कुछ यजदान खुद भी जानता था। यजदान का सर्द अंदाज ताबीर का दिमाग घुमा गया था। इतनी सी बात पर तुम मुझे यहाँ तनहा छोड़कर जाओगे? उसने उसके सीने पर हाथ रखे उसे दूर धकेला। ताबीर, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। यजदान को अपने लहजे की तलखी का एहसास हुआ। जाओ, छोड़ जाओ, कर दो तनहा मुझे। उसे बिलावजा रोना आया। वो यजदान की एक सेकंड की सख्ती भी बर्दाश्त नहीं करती थी। ताबीर, मेरी बात सुने। उसने ताबीर को संभालना चाहा, लेकिन ताबीर बिगड़ चुकी थी। बात मत करो मुझसे, जाओ, चले जाओ। ताबीर, तुम्हें कौन सा मेरी परवाह है? वो हनूज मसनूई नाराजगी से बोली, लेकिन यजदान को उसका अंदाज अच्छा खासा चुभा था। ताबीर, आप हद कर रही हैं। यजदान को इस वक्त अपनी कैफियत ही समझ नहीं आती। वो ताबीर को क्या समझता? उसे ताबीर की फिक्र हो रही थी, लेकिन वो अपने भाई की फिक्र में घुल रही थी और यही चीज़ उसे गुस्सा दिला रही थी। ताबीर को रोना आया, लेकिन वो मुड़ी नहीं। यजदान गुस्से से दरवाज़ा खोलता बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की तेज़ आवाज़ पर उछली। ताबीर का दिल बुरी तरह घबराया। वो नाराज़ हो चुका था और अपनी नाराज़गी का एहसास वो यहाँ से जाकर अच्छा खासा जता चुका था। कमरे में आते ही वो बेचैन होने लगी। नजमा खातून भी अपने कमरे में जा चुकी थी, तभी वो यहाँ आई थी। कुछ उसे आवाज़ का खौफ भी था। पहले तो वो नीचे चली गई थी, लेकिन अब कमरे में आना ही पड़ा था, जहाँ वो कभी नहीं आना चाहती थी। उस कमरे ने उसके जख्म ताज़ा कर दिए थे। काफ़ी देर वो खुद को बहलाती रही, लेकिन फिर एक बेकरारी सी हर जानिब बढ़ती महसूस हुई। पहली रात की तलखियाँ उसके वजूद में कांच की तरह पैवस्त होने लगी। उस कमरे ने ही तो उसे वहाँ सुल्तान का वो रूप दिखाया था जिसका उसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। नबी का सांस फूलने लगा। सख्त सर्द मौसम में भी उसकी हथेलियों पर पसीना चमक रहा था। वो गहरे सांस लेने लगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जानना है, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। वो बुड़बुड़ाई थी उसकी, और इन अजियतनाक सरगोशिनी अनाबी को वहशत ज़दा कर दिया था। उसने दहलकर कानों पर हाथ रखा, लेकिन फिर भी सुकून नहीं आया। वो तेज़ कदमों से बाहर निकली तो हर तरफ गहरी खामोशी थी, जबकि सर्द मौसम से हुई धुंध ने वैसे ही पुरअसर तारीख की हुई थी। उसे खौफ आने लगा। कमरे से इर्द गिर्द से, घर अपने आप से। वो तवील राहदारी से तेज़ कदमों से गुजरती, इर्द गिर्द देखती। सीढ़ियों की जानिब है। एक जानिब ऊपर छत पर जाने का रास्ता था, जबकि एक रास्ता नीचे जाने का। अनाबी का सर घूमने लगा। वो चकराते सर के साथ रेलिंग थामती रुकी थी, लेकिन इर्द गिर्द ज़मीन घूमती महसूस हुई। वो सीढ़ियों पर पहला कदम रखने लगी जब हाथ लड़खड़ाया। हाथ और तवाज़ुन दोनों बिगड़ा था। जब भी वो चीखी, लेकिन किसी ने उसे अपनी जानिब खींचकर मुंह पर हाथ जमा दिया। चीख वही हल्क में दब गई। वो सीधा उसके सीने से टकराई थी जब वहाज ने उसकी कमर के गिर्द बाजू फैल किया, उसे गिरने से बचा लिया। अनाबिया ने खौफ से आंखें मीच ली और उसकी पुश्त के गिर्द अपने हाथ बांध लिए। उसका हिसार उसकी खुशबू नहीं एहसास दिला दी था कि वहाज सुल्तान के अलावा उस पर कोई दस्तरस नहीं रख सकता। अनाबिया, वहाज ने उसका गाल थपथपाया। अपनायत भरा लहजा और सितमगर की पुकार सुनकर उसकी जान में जान आई। अनाबिया ने घुनेरी पलकें वाह की और उसे देखने के लिए तस्दीक की। वो सामने ही था। तस्दीक तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दिल को बावर करवाना था। सर्द तसुरात चेहरे पर जमाए, सुर्ख आंखों में अलग ही तपिश थी। उसे एहसास हो चुका था कि वो नाराज़ हो चुका है। आज मैं वहाँ नहीं। उसने शिद्दत से उसे पुकारा था और फिर उसे बताना चाहा, जैसे अब भी उन लम्हों के हिसार में हो जिससे भाग कर वो बाहर आई थी। किससे भाग रही थी तुम? उसने दो टोक अंदाज में पूछा। किसी से नहीं। उसके हिसार से निकलने के लिए मचली। जब उसने अनाबिया के हिसार सख्त किया और चेहरा करीब किया, अनाबिया पीछे की जानिब झुकी थी। आंखों और चेहरे पर खौफ बढ़ने लगा। वहाज भी उसकी जानिब मसीज चुका और चेहरे से बाल हटाए जो उसकी आंखों में चुभन दे रहे थे। उसकी पूरों को लमस उसके पूरे वजूद में सनसनी दौड़ा गया था। दोनों में फासला चंद इंच का बाकी था। जब मैंने कमरे में जाने को कहा था तो नीचे क्यों गई थी, और अभी तुम वहाँ से बाहर आ गई? उसका लहजा बेलचक था, गोया अनाबी को सजा देना चाहता हो। मुझे वहशत हो रही थी उस कमरे से, मुझे खौफ महसूस हो रहा था। हाँ, बिखरी यादें मुझे अजियत दे रही थी। अगर वहाँ कुछ देर और रुकती
तो शायद मेरी सांसें निकल जाती। उसका लहजा भीग चुका था, जो वहाज को वाज़े महसूस हुआ। तुम्हें इस कमरे से वहशत हो रही थी, जो तुम्हारी पनाहगाह है। तुम्हें इस कमरे से वहशत या खौफ नहीं महसूस करना चाहिए, बल्कि इस कमरे से उनसीत महसूस करो, जिसने इस रात तुम्हें वहाँ ठहरने नहीं दिया, वरना बहुत कुछ गलत हो जाता। वो जता ऐसे अंदाज में बोला, अनाबिया सुलह कर रह गई। हो तो गया है आज, इतना कुछ गलत और कितना बाकी है। उसने आवाज के दिल पर हाथ रखे भीगी सी आवाज़ में कहा, यह तुम्हारे अपने दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं। शुक्र करो अनाबिया वहाज सुल्तान के, तुमने वहाज सुल्तान का दूसरा रूप नहीं देखा, वरना तुम अब तक जिंदा ना होती। क्योंकि मैं अपने गुनहगारों को बख्शता नहीं हूँ। जिंदा रहने की चाह भी किसी है। जिस जिंदगी में आपकी मोहब्बत नहीं, उस जिंदगी को मुझे करना भी किया। लेकिन फिर भी एक बात कहूँ, उसने वहाज से इजाज़त चाहिए। वो खामोश जामिद लबों के साथ उसका चेहरा देख रहा था। यानी इजाज़त देने का एक तरीका था। मुझे खुद से खौफ आता है वाज, डर लगता है कि मैं आपकी मोहब्बत भरी नज़र की आसली मार ना जाऊँ। पर आपको कौन सा फ़र्क पड़ेगा। वो तलक सा मुस्कुराई। वाज को उसकी हालत समझ से बाहर लगी थी। ये वक्त नहीं है शिकवे का। उसने अनाबी को टाला था। फिर कब वक्त होगा, बताएं मुझे। कब मेरे बनकर मेरी मोहब्बत का दाम पार कर मेरी जानिब बढ़ेंगे, बताएं मुझे। वो दांत पर दांत जमाती रोई थी। अनाबिया, हम हवेली में हैं, कमरे में चलो, वहाँ जाकर बात करते हैं। उसने अनाबिया का चेहरा थाम कर नरमी से कहा। अनाबिया ने सूरज से उसके हाथ झटके, नहीं जानना मुझे। अनाबिया जिद न करो, हवेली में मेहमान भी मौजूद है। वो नरमी से बोला। दर हकीकत वो उसे शहन सागर घटिया तरीन नज़र से बचाना चाहता था। शाम का मंजर वो अभी भी नहीं भूला था, जब शहन सागर ने अनाबिया सुल्तान पर नज़र डाली थी। इस वक्त वहाज ने मुठियाँ भींचकर जिस तरह साबित किया था, हालांकि उस शख्स की निगाह आम थी, लेकिन उसकी आम सी नज़र भी अपनी बीवी पर कैसे बर्दाश्त कर लेता। मुझे नहीं जाना कहीं भी, वो अटल अंदाज में बोले, जबकि दिल लर्ज रहा था कहीं वो एक थप्पड़ ही न लगा दे। उसका भारी हाथ का अकलौता थप्पड़ अनाबिया की जान निकाल देता, और इतनी जल्दी वो मरना नहीं चाहती थी। वहाज ने माथे पर बल ही उसे देखा। यह बगावत तुम्हारे अंदर कौन भर रहा है, मैं अच्छे से जानता हूँ। उसकी खबर तो मैं घर जाकर लूँगा और तुम्हें भी अच्छे से समझाऊंगा। अब अगर तुम मेरे साथ कमरे में ना गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम यहाँ किसी फंक्शन में नहीं है जो तुम्हारी नाज बर्दारियाँ बर्दाश्त करूँ। वो घुर्राया था, जबकि अनाबी को ढेरों रोना आया था, लेकिन अपनी जगह से वो टस से मस ना हुई, गोया उसकी परवाह ही ना हो। वाज ने इर्द गिर्द देखा और अगले ही पल उसे बाहों में भरा, जबकि अनाबी के दबी दबी चीख निकली। आंखें सुकेड़ कर फैली और धड़कनों ने अलग शोर मचाया था। खबरदार, जो तुम्हारी आवाज़ भी निकली। उसने धमकी दी, जबकि वो शर्म और खिफत से लाल हुई थी, लेकिन बाजू गर्दन के गिर्द हैल कर गई थी। जबकि वो सपाट चेहरे के साथ आगे बढ़ता गया, दिल तो उसका भी मचल रहा था। उसका नरम और नाजुक वजूद बाहों में था, हक से उसे थामा हुआ था। तभी दिल अनकहे से जज्बात अयां कर रहा था, लेकिन इन जज्बात पर वो ठंडा पानी डाल देना चाहता था कि आगे तक जाकर ये जज्बात उसे तकलीफ ना दे। कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसने अनाबी को बेड पर फेंकने से अंदाज में बिठाया। जितने दिन मैं हम यहाँ तमीज़ के दायरे में रहना, मैं नहीं चाहता कि हमारे तल्लुकात के बारे में किसी को ज़रा भी खबर हो, क्योंकि मैं लोगों को मौका नहीं देता है कि वो मेरी बीवी के बारे में कोई उल्टी सीधी बकवास करे और वो मेरे हाथों बेमौत मारे जाएं। उसकी थोड़ी दबुच्चे वो अनाबी को वज से करता। सहमा तो गया था, लेकिन दिल की बहरान हालत को भी बहार में बदल गया था। अनाबी ने भीगी तशक्कुर भरी आंखों से उसे देखा। दोनों की नज़र आपस में मिली। वहाज की थोड़ी पर गिरफ्त अब भी मजबूत थी, लेकिन अनाबिया उस शख्स का संजीदा बारूफ चेहरा बिना पलक झपकाए अपनी आंखों में जज़ब कार थी। उसकी डटाई पर वहाज को हैरानगी होने लगी। अब तो वो उससे डरती भी बमुश्किल थी, और यही चीज़ उसे चिड़ में मुब्तला कर रही थी। वहाज ने उसका चेहरा झटाकर जबीन आज़ाद की और खुद बालों में हाथ फिरकर आंखें बंद कर गया, जबकि अनाबी को बिला वजह हंसी है जिसे वो लब दबाकर छुपा चुकी थी। कुछ देर पहले की कैफियत ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इस रात वाला हवाज भी बदल चुका था। तभी वहशतें ख़त्म होने लगी। अब दिल पुरसकून था। वो वहाज को देखते नकवा से ब्लैंकेट ओढ़ती लेट गई। चंद पल बाद ही वो दूसरी जानब आकर लेटा तो अनाबी ने ब्लैंकेट मुट्ठी में दबोच लिया। तभी वहाज ने कंबल थोड़ा सा खींचा और अपने ऊपर लिया। यहाँ बहुत सर्दी, आप दूसरा कंबल ले लें, वो मध्यम आवाज़ में बोली, लेकिन अपने बोलने पर उसे अफसोस हुआ था। जब वहाज ने उसको अपनी जानिब खींचा और खुद में कैद किया, वो सुन्न हो गई थी। वो इस हद तक करीब कर लेगा, ज़रा सा भी पता होता। वो उसे कहते हुए भी 100 मरतबा सोचती, अब तुम्हारी आवाज़ है तो छत पर फेंक कहूँगा, फिर वहाँ सो जाना, बिना ब्लैंकेट और बिना किसी बिस्तर के। वो लफ्ज़ों की तलखी उसकी सम्मात में उतारे, उसकी बोलती बिल्कुल ही बंद कर गया था। अनाबी ने दहल कर अपने लबों पर हाथ जमा, लेकिन कहीं
کہیں اس کی زبان پھر سے نہ پھسل جائے۔ اتنی سردی میں بنا کسی بستر اور کمبل کے اس کا برف کی طرح جم کر مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی پناہ میں نیند آنا تو مشکل تھا، لیکن وہ سونے کی کوشش تو کر ہی سکتی تھی۔ جب خواج اسے قریب تو کر چکا تھا، لیکن اس کا نرم و نازک وجود نیند آنکھوں سے چرا کر لے گیا تھا، پر وہ فی الحال اسے آزاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔